one of the results that we proved yesterday, one of the important results that we proved yesterday was this characterization of continuity, according to which a function from x to y is continuous if and only if the image of the closure of Rekha, the image of the closure of every subset is contained in the closure of the image of that set, right? If a closure is contained in this thing, ठीक है? तो ये जो कंटिन्यूटी का कैरेक्टरेशन है ना, इससे मिलते जुलते और भी कई सारे रिजल्ट्स हैं विच यू कैन फाइंड एज either results or exercises in some books. So I'll just mention the following. The same f is continuous if and only if f inverse of B closure is contained in this thing. और भी मिल जाएंगे आपको, जैसे f is continuous if and only if this thing is contained in this. Of course, both these things for every subset B of y. ठीक है, तो ये भी सरल है, ये भी सरल है. एज यू विल एग्री वंस आई जस्ट गिव यू ए ग्लिम्स ऑफ द प्रूफ ऑफ दिस थिंग. इसका ऐसे कर लीजिएगा, राइट? ये क्यों होगा? ये इसलिए होगा, से फॉर एग्जाम्पल proof of 1. So first let f be continuous, and don't forget it means that inverse image of each closed set is closed. ठीक है? So let it be continuous. हमको ये दिखाना है, हमको ये दिखाना है कि f inverse of B का closure is contained in f inverse B closure for every subset B. तो कोई ले लीजिए subset B of y, right? Then since f is continuous and the closure of every set is closed, so continuity tells us that inverse image every closed set is closed. So that means in particular the inverse image of this closed set is closed. Where? Obviously in X. So हमको मालूम है कि set is closed if and only if it is equal to its closure. ये तुमको मालूम ही है, तो आपको ये मिल जाएगा, राइट? सो दिस इज ऑलवेज द केस. हमें क्या दिखाना है? हमें क्या दिखाना है? ये चीज हमें दिखाना है, दिस थिंग, राइट? सो continuous if and only if this thing is contained in this thing. So this is closed, therefore this thing happens, right? So you can see that f inverse B. Now since f inverse
since F inverse B is always contained in F inverse B closure, क्योंकि B closure जो है B से बड़ा है, therefore इसका closure इससे closure में contained होगा, therefore F inverse of B closure will be contained in F inverse of B closure, इसका closure, लेकिन इसका closure जो है इसके बराबर है, which is equal to F inverse this thing. तो अगर F continuous है, then F inverse B closure you can see is always contained in this thing. तो एक तरफ तो हो गया, ठीक है. So कन्वर्स हम आपके लिए छोड़ देते हैं, राइट. आपको केवल इतना याद रखना है कि कंटिन्यूटी दिखाने के लिए हम ये भी दिखा सकते हैं दैट इनवर्स इमेज ऑफ एवरी क्लोज सेट इज क्लोज. तो हम क्या करेंगे कि इसको मान लेंगे, इसको मान लिया हमने फॉर एवरी बी, राइट. सो एस्यूम स्टार और फिर कोई क्लोज सेट ले लीजिए, राइट. सो यू वांट टू शो दैट F inverse F is closed, which is same thing as showing that this thing is equal to its closure. This thing is equal to its, ये बराबर दिखाना से काम चल जाएगा, ये क्लोज हो जाएगा. तो ये तो हमेशा मालूम है कि ये जो है इसमें कंटेंट होगा चाहिए, क्लोजर हमेशा बड़ा होता है, तो केवल इतने दिखाने से काम चल जाएगा, राइट. सो आपको केवल ये दिखाना है ये चीज, और आपको क्या दिया हुआ है, दिस थिंग इज ऑलवेज ट्रू. तो आप B की जगह पे ले लीजिएगा F ले लीजिएगा इस कंडीशन में, और याद रखिएगा कि आपका जो B है चूंकि बराबर F के, तो B इज क्लोज्ड, तो B क्लोजर जो हो जाएगा F क्लोजर हो जाएगा, F क्लोजर बराबर F के हो जाएगा, और अपने आप ये चीज निकल के आ जाएगी, राइट. हम इसको करेंगे नहीं, राइट. आपको इसलिए करने को कह रहे हैं जिससे कि आपके दिमाग में चीजें बैठे, राइट. सो यू कैन, इन एडिशन टू दिस थिंग विच इज ऑफ कोर्स more frequently used, sometimes people also use this alternative way of testing continuity, right? For every subset B of Y, F inverse B का closure is contained in F inverse B closure, या F inverse B का interior is contained in the interior of F inverse B, right? इसको भी करके देखिएगा. इसका screenshot ले लीजिए, then I'll pass on to something else. यहीं पे एक चीज और लिख दें बिफोर यू टेक द स्क्रीनशॉट. क्योंकि जगह बची हुई है तो आपको वो ये है, डेफिनेशन है, ए फंक्शन बिटवीन टॉपोलॉजिकल स्पेसेस, बल्कि फ्रॉम टॉपोलॉजिकल स्पेस X to Y, दिस is called open if Fg is open for every open set here. It is said to be closed if FF is closed for every closed subset F of X. यानी कि a function is said to be open if it maps open sets to open sets. It is said to be closed if it maps closed sets to closed sets. बड़ी सिंपलेस्ट डेफिनेशन है, राइट. सो ओपन कब कहलाएगा कोई फंक्शन? यदि ओपन सेट्स को ओपन सेट्स में भेजे, और क्लोज्ड यदि क्लोज सेट्स को क्लोज में भेजे, राइट. तो कभी कभी इसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे एंड विल कम अक्रॉस एग्जांपल्स. बल्कि एक छोटी सी चीज नोट कर लीजिए यहाँ पर कि रिमार्क,
if image of each basic open subset of X is open, then F is open. क्या चीज नोट कीजिए, डेफिनेशन के मुताबिक यदि आपको ये टेस्ट करना है कोई फंक्शन ओपन है कि नहीं, तो आपको देखना पड़ेगा क्या हर ओपन सेट की इमेज ओपन है कि नहीं. रिमार्क अगर ये सही है तो आपका काम थोड़ा कम कर देगा. आपको सभी ओपन सेट्स की इमेज ओपन है टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, केवल इतना टेस्ट कर लीजिए कि क्या इमेज ऑफ एवरी बेसिक ओपन सेट ओपन है कि नहीं. क्योंकि ऑर्डिनरीली नंबर ऑफ बेसिक ओपन सेट की संख्या कम होगी कंपेयर टू नंबर ऑफ ओपन सेट्स. तो अगर ये बात सही है तो आपका कोई फंक्शन ओपन है कि नहीं ये टेस्ट करना थोड़ा सरल हो जाएगा, बिकॉज यू ओनली हैव टू टेस्ट कि केवल बेसिक ओपन सेट्स की इमेज ओपन है कि नहीं, सारे ओपन सेट्स की इमेज टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, राइट. और इसके कारण ये है क्या कारण है इसका, कारण इसका ये है कि इफ B is a base for this thing, हमें क्या दिखाना है, ये दिया हुआ है कि इमेज ऑफ ईच बेसिक ओपन सेट इज ओपन. हमको दिखाना है कि इमेज ऑफ एवरी ओपन सेट इज ऑल्सो ओपन. then given any open set you can write this thing as union of basic open sets. ये तो बेस की परिभाषा से आ जाएगा, where all these BIs are members of this thing. तो हर ओपन सेट जो है बेसिक ओपन सेट का यूनियन होता है. सो देयरफॉर अगर आपने इसकी इमेज निकालनी शुरू की तो आई कैन रीराइट दिस थिंग एज दिस थिंग. और सेट थोड़ी बताती है कि दिस थिंग इज सेम थिंग एज यूनियन ऑफ दिस थिंग. विच इज ओपन. हम ये मान के चल रहे हैं कि हमें ये दिया हुआ है कि इमेज ऑफ ईच बेसिक ओपन सेट इज ओपन, विच इज ओपन एज each this, because this is image of a basic open set, this is open. तो चूंकि हर FBI ओपन है और आपको ये भी मालूम है कि यूनियन ऑफ ओपन सेट्स रिमेन्स ओपन, so this is union of open set, therefore this will be open. That means FG is open, right? तो अगर इतना केवल मालूम हो कि इमेज ऑफ एवरी बेसिक ओपन सेट इज ओपन, तो आप गारंटी कर सकते हैं कि इमेज ऑफ एवरी ओपन सेट इज ऑल्सो ओपन. तो ओपन सेट्स के लिए ये भी थोड़ा सा सिंप्लीफाइड तरीका हो जाएगा टेस्ट करने का कि कोई फंक्शन ओपन है कि नहीं. जैसा हमने आपसे कहा कि हम लोग डेफिनेशन जो है एग्जाम्पल जो है बहुत सारी मिल जाएंगी थोड़े समय के बाद. नाउ टेक द स्क्रीनशॉट, देन आई विल पास ऑन टू समथिंग एल्स. हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? Okay, so now I'll start with a fresh page. अब एक ये डेफिनेशन आती है, और इसको डेफिनेशन को आगे लिखने के पहले मैं आपको बता दें इसका बैकग्राउंड. जैसे आपने दो ग्रुप्स हैं, ग्रुप तो पढ़ा है आपने, तो आपको याद होगा कि हम एक डिफाइन करते हैं ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, और कुछ समय पश्चात हम लोग ये भी डिफाइन करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रुप आइसोमॉर्फिज्म. तो ग्रुप आइसोमॉर्फिज्म होती क्या है, अगर दो ग्रुप्स हैं G और G डैश, देन ए फंक्शन f from G to G डैश इज सेड टू बी ग्रुप होमोमॉर्फिज्म यदि ग्रुप
आइसोमॉर्फिज्म, यदि F होमॉर्फिज्म हो, F11 ऑन टू हो, ठीक है, उससे काम चल जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर, जैसे वहाँ पर ग्रुप में आइसोमॉर्फिज्म का कंसेप्ट है, तो उस टाइप का ही कुछ कुछ कंसेप्ट टोपोलॉजी में भी है। उसका नाम है F is called a होम्यो, स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा, होमोमॉर्फिज्म नहीं है, एक ई आ गया है बीच में। इट इज सेड टू बी ए होम्योमॉर्फिज्म, राइट, और ए टोपोलॉजिकल इक्विवेलेंस, हालांकि ये नाम बहुत कम इस्तेमाल होता है, अधिक ये इस्तेमाल होता है। इट इज सेड टू बी होमोमॉर्फिज्म इफ F is 1 and on 2, जैसा कि आइसोमॉर्फिज्म होता है, F is 1 and on 2, F is continuous, और अगर आपका F आइसोमॉर्फिज्म है ग्रुप के बीच में, तो F इनवर्स भी होमोमॉर्फिज्म होता है। ऐसे यहां पर भी एंड F इनवर्स, दिस इज 1 on 2, पहला ये, दूसरा ये, और तीसरा दिस इज ऑल्सो कंटिन्यूअस। तो ये तो आपको मालूम ही है, सेट थ्योरी से आपको पहले से ही मालूम है कि recall that a function f between two sets is, इसको दोबारा लिख दें हम, is invertible मतलब that is its inverse exists if and only if F is 1 and on 2। ये तो आपको मालूम ही है सेट थ्योरी से, ठीक है, ऐसा होता है। तो अगर ये F, तो यहां से यहां तक आपके पास ये फंक्शन है, तो जो ही ये 1 on 2 हुआ, इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा, ये मान लीजिए इसका इनवर्स है, इनवर्स हो जाएगा, राइट। तो ये कब एग्जिस्ट करेगा? जब F11 on 2 होगा। तो हम क्या चाहते हैं कि F11 on 2 हो, जिसके कारण F इनवर्स एग्जिस्ट करने की गारंटी हो जाएगी। तो F भी कंटिन्यूअस हो और F इनवर्स यहां से यहां तक जो उल्टा मैप होगा वो भी आप कंटिन्यूअस चाहिए। दिस इज व्हाट इट सेज, दिस इज सेड टू बी ए होमोमॉर्फिज्म यदि ऐसा होता है, राइट। तो होम्योमॉर्फिज्म को पहचानने के कुछ अल्टरनेटिव तरीके हैं जिनको हम समराइज कर देते हैं ऐसे। प्रोपोजिशन फॉर ए फंक्शन f between two topological spaces, the following statements are equivalent। क्या क्या? एक तो ये कि हम यहां से लिखते हैं, जो भाई जगह बच जाएगी। एक तो ये है स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट। कौन कौन से? पहला, F is for a bijective map, यानी for a 1 on 2 map, the following are equivalent:
F is a होम्योमॉर्फिज्म, दूसरा F is continuous and open, तीसरा F is continuous and closed, चौथा F of A closure is equal to F of whole closure for every subset A of X. ठीक है, प्रूफ, और प्रूफ वंस अगेन सरल है, 1 implies 2 का प्रूफ। ठीक है, तो अगर एफ होमोमॉर्फिज्म है तो होमोमॉर्फिज्म की परिभाषा में ये इंक्लूडेड है कि एफ इज कंटिन्यूअस, तो ये वाला पार्ट तो ऑब्वियस हो गया, राइट। सो एफ इज obviously continuous. This follows from the definition of होम्योमॉर्फिज्म। ये तो कुछ करना नहीं हमको, ठीक है। अब हमको दिखाना है कि F is open. F is open. Okay. I think I'll draw a picture. पिक्चर से चीजें समझ में जल्दी आती हैं, ठीक है। पिक्चर प्रूफ का सब्स्टिट्यूट नहीं है, लेकिन पिक्चर जो है प्रूफ को समझने में सहायक होता है, राइट। तो कभी भी पिक्चर को प्रूफ का सब्स्टिट्यूट मत मानिएगा, राइट। लेकिन जब जरूरत हो पिक्चर बना करके समझने की कोशिश कीजिए कि क्या हो रहा है, तो आर्ग्यू करने में आपको सरलता महसूस होगी। ये हमारा फंक्शन है, ये हमारा फंक्शन है। हमें क्या दिखाना है कि 1 implies 2 कि F कंटिन्यूअस, जो कि हो चुका है, और F इज ओपन। तो ओपन के लिए क्या दिखाना है कि हर ओपन सेट की इमेज ओपन होगी। तो कोई ओपन सेट लिया हमने, ये G ले लिया, राइट। लेट मी राइट, सो लेट G बी ओपन। अब हम इसकी इमेज यहां पर जाते हैं। ये इसकी इमेज हुई, ये इसकी इमेज हुई। मान लीजिए इसकी इमेज ये है F of G, ये इसकी इमेज हुई। मान लीजिए इसकी इमेज क्या है, राइट। हमको दिखाना है कि F G इज ओपन। हमको क्या दिखाना है, F G इज ओपन। सो हाउ डू आई डू इट। हमें दिया हुआ F इज होमोमॉर्फिज्म, ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट। सो हमको मालूम है कि चूंकि F होमोमॉर्फिज्म है, लिहाजा 1 on 2 है। इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है यहां से यहां तक। ये F इनवर्स है, ये F इनवर्स है, ये F इनवर्स है। तो F इनवर्स Y से लेकर के X पे, चूंकि F इनवर्स इज कंटिन्यूअस, राइट। सो सिंस F inverse as a map from Y to X is continuous, therefore inverse image of every open set here is open here. In particular inverse open set ले लीजिए, यहां पर याद G ले लीजिए। Since this is continuous, therefore F inverse, ये function का inverse of G is open in Y. But since F is 1 on 2, therefore अगर G, अगर इसकी इनवर्स इमेज लीजिएगा अंडर F इनवर्स, क्या मिलेगा आपको, FG मिलेगा। You'll get this thing,
क्योंकि G11 ऑन टू है ना, G11 ऑन टू है, तो इसकी इनवर्स, इसकी इमेज ये हो गई, तो इसकी इनवर्स इमेज क्या मिलेगी आपको? FG मिलेगी. सो देयरफॉर F inverse G is nothing but FG. Right? So because this is open, so FG is open, whereby 2 holes. ठीक है. यहां पर हम आपको एक चीज बता दें जो कि थोड़ा सा विषय से हटके है, और वो ये है कि x से y में अगर कोई फंक्शन है 1 1 2 की बात नहीं कर रहा है, 1 1 2 की बात नहीं, इसको बाद में मिटा देंगे, 1 1 2 की बात नहीं कर रहे हैं. तो हम यहां पर अगर b कोई सबसेट है तो इनवर्स इमेज ऑफ b को हम कैसे डिफाइन करते हैं? वो तमाम x के एलिमेंट्स जिनकी इमेज b में लाई करती, ये परिभाषा है. तो आप देखिए कि इनवर्स इमेज डिफाइन करने के लिए हमें F1 ऑन 2 इसकी कोई जरूरत नहीं, इनवर्स इमेज हमेशा डिफाइंड है, राइट. अच्छा, अब इसका जो इनवर्स है, इसका इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जबकि फंक्शन 1 ऑन 2 है, जबकि इनवर्स इमेज हमेशा डिफाइन कर सकते हैं. और इनवर्स को कैसे डिनोट करते हैं हम लोग? F इनवर्स से डिनोट करते हैं. तो यहां पर क्या गड़बड़ी हो रही है? गड़बड़ी क्या हो रही है कि दुर्भाग्यवश शुरुआत में लोगों ने इनवर्स इमेज ऑफ सबसेट के लिए ये नोटेशन ले लिया और इनवर्स ऑफ फंक्शन का भी ये नोटेशन ले लिया. तो यहां पर ये जो हमने 2 बार लिखा हुआ है, 2 बार जो लिखा हुआ है, ये वाला इनवर्स जो है वो इनवर्स इमेज का है, और ये वाला इनवर्स जो है वो इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन है. ये गड़बड़ी हो गई नोटेशन में, राइट. तो अब तो खैर लोगों ने सुधार कर लिया, लेकिन आपकी किताबें तो बहुत पहले की लिखी हुई हैं, तो आपको आपके पास जो हाथ में पुस्तक होगी उसमें नया नोटेशन नहीं मिलेगा, राइट. तो हम ये बताना चाहते हैं, राइट, many mathematicians, these days, पहले तो नहीं करते थे, और पर्टिकुलरली कंप्यूटर साइंस जो लोग इस्तेमाल करते हैं या में इस्तेमाल करते हैं इनवर्स, many these days denote this inverse image as F, उल्टा एरो कर देंगे, वो इसको इस ऐसे डिनोट नहीं करेंगे, वो F इनवर्स रिजर्व करेंगे फॉर द इनवर्स ऑफ ए फंक्शन, जो तभी एग्जिस्ट करेगा जबकि F 1 ऑन 2 हो, जबकि इनवर्स इमेज के लिए 1 ऑन 2 कोई बाध्यता नहीं है, राइट. तो ये थोड़ा सा विषय से हटके है, और इसलिए हमने बताया कि यहाँ पर हमने जो इस्तेमाल किया है, ये दोनों का अर्थ अलग है. ये तो है इनवर्स ऑफ फंक्शन जो तभी एग्जिस्ट करेगा जब F1 ऑन 2 हो, और ये क्या है? इनवर्स इमेज. तो दुर्भाग्य से चूंकि नोटेशंस में कोई फर्क शुरू में लोगों ने सोचा नहीं था, ऐसे लिख दिया है. तो अगर आज की तारीख में लिखते हैं हम इसको लिखते तो कैसे लिखते? इसको हम कैसे लिखते? इसको हम लिखते आज की तारीख में F, ये तो फंक्शन हो गया, और फिर इस फंक्शन के अंडर इनवर्स इमेज ऑफ दिस G, हम इसको ऐसे लिखते हैं, राइट, ये लिखते हैं, राइट. तो बट एनीवे, तो केवल आपको जिन लोगों को थोड़ी जिज्ञासा होगी उनकी जानकारी के लिए, बट राइट. सो द मेन थिंग वाज टू एम्फसाइज कि ये दोनों जगह, इन दोनों का थोड़ा फर्क है, राइट. सो in any case this is equal to FG, therefore 2 holes, right, therefore 2 holes. तो 1 implies 2 तो हो गया, right. Now
आई थिंक यू बेटर टेक इट्स स्क्रीनशॉट. तुम जरा ऊपर चले जाए. टेक द स्क्रीनशॉट. बोलिए, हो गया? Yes, sir. Okay. Okay. So now let me now prove. Now let me prove this thing. 1 implies 2 तो हो गया. अब हमारा नंबर आता है किसका? 2 implies 3. ठीक है. तो 2 क्या कहता है कि f कंटिन्यूअस है ओपन. रिमेंबर एक चीज मत भूलिएगा कि ये दिया हुआ है कि f इज बाइजेक्टिव. ये चारों के लिए है. फॉर ए बाइजेक्टिव फंक्शन ऑल दीज आर इक्विवेलेंट, राइट? तो f बाइजेक्टिव तो है ही है, और 2 के मुताबिक f कंटिन्यूअस भी है और ओपन भी है. हमें ये दिखाना है, तो कंटिन्यूअस तो कुछ दिखाने की जरूरत है नहीं, केवल ये दिखाना है कि सो वी ओनली नीड टू शो दैट f इज क्लोज. यानी कि अगर हमने कोई क्लोज सेट लिया, हम क्या दिखाना चाहेंगे? f of f is also closed. हमें क्या दिखाना है? This is also closed, right? So to show ffs is closed, where? Of course in y. It suffices to show that its complement is open. But आप नोट कीजिए, ये सेट थ्योरी है, इस पर टोपोलॉजी नहीं है, सिंपल सेट थ्योरी. दिस सेट is nothing but f of x minus f. क्यों होगा? अगर यहां पर कोई y हुआ, अगर यहां पर कोई y हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि y is not in ff, which means y is not equal to fx for any x in f. लेकिन चूंकि ये फंक्शन 1 है, 1 है, देखिए यहां पर ये y बैठा हुआ है, ये y मान लीजिए कैपिटल Y के अंदर है. चूंकि 1 है तो शर्तिया यहां पर कोई ना कोई एलिमेंट होगा जिसकी इमेज y होगा. चूंकि ऑन टू फंक्शन है, कोई ना कोई एलिमेंट यहां जरूर बैठा होगा जिसकी की इमेज होगा. तो y इज नॉट इक्वल टू एफ एक्स फॉर एनी एक्स इन f. लेकिन फिर भी y को किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज तो होना ही होना है. तो चूंकि y किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज होना है, तो वो एलिमेंट f में तो नहीं हो सकता. इसका मतलब कि y इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट विच इज आउटसाइड f, राइट? सो दिस इंप्लाइज यहां हम यूज कर देते हैं, हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं सिंस f इज ऑन टू, बल्कि f इज बाइजेक्टिव लिख दें. सिंस f इज बाइजेक्टिव, इसमें ऑन टू भी शामिल है, 1 भी शामिल है. सो सिंस f इज बाइजेक्टिव, f को होना पड़ेगा किसी ना किसी
भी होगा, राइट? ये भी हो गया। दिस थिंग वो भी कर लेते हैं, इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ओके, ओके, सो नाउ 2 implies 3, अब दिखाते हैं 3 implies 4। 3 implies 4, ठीक है। सो सिंस f इज कंटिन्यूअस, हमारे पुराने रिजल्ट के हिसाब से, जो कि आज हमने सुबह सुबह आपको याद दिलाया था, f of a closure is contained in this thing। ये तो हो गया आपका, एक तरफ का तो हो गया। अब कब दिखाना है कि दिस थिंग इज कंटेन्ड इन दिस थिंग, राइट? उल्टा दिखाना है आपको, दैट दिस थिंग इज कंटेन्ड इन दिस थिंग। सो क्या दिया हुआ है हमको? दिया हुआ है दिस इज क्लोज्ड। नाउ 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 सिंस a bar is closed and by 3 f is closed, therefore image of any close under f is closed, in particular this is closed, this is closed। So therefore अगर ये क्लोज्ड है तो ये अपने क्लोजर के बराबर है। दिस इज इक्वल टू f of this closure, this is equal to this thing, this is equal to this thing। So how do I prove this thing? Now since a is always contained in a closure, इसमें तो कोई शक नहीं है, f of this thing, and therefore so f of a closure is contained in f of this का क्लोजर इसमें कंटेंट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर a is contained in b, then a closure is contained in b closure, वहां से हो जाएगा। अब इसको मिला दीजिए इसमें, अब इसको मिला दीजिए इसमें, चूंकि ये चीज इसके बराबर है, इससे क्या हो जाएगा? दोनों को मिला दीजिए, इसको इसको मिला दीजिए, क्या आ जाएगा यहां से कि f of a का क्लोजर इज कंटेन्ड इन दिस थिंग, राइट? सो लेट मी जस्ट राइट, okay, so from here so these two things imply, otherwise हमको नया पेज लिखना पड़ेगा। these two things imply, so therefore f of f of a, f of हमको क्या दिखाना था? हमको क्या दिखाना था कि ये तो हो ही गया था। हमको दिखाना था f of a closure is contained in this thing, so f of a closure is contained in this thing, so therefore f of a closure is contained in this thing, और ये इसके बराबर है ऑलरेडी, so this thing is contained in
एफ ऑफ ए बार, राइट? तो ये प्रूव हो गया, 3 implies 4 भी हो गया, 3 implies 4 भी हो गया। अब हमको रह गया कि क्या दिखाना है कि 4 implies 1। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया जी? यस सर। ओके, सो रिमेंबर हमको क्या दिखाना है कि 4 implies 3। Okay, so let me use this space. So proof of 4 implies 1। रिमेंबर, ये मत भूलिएगा कि आपका एफ हमेशा बाइजेक्टिव है, क्योंकि वहां छिपा हुआ है, दिखाई नहीं पड़ता बार बार। 4 implies this thing। तो क्या दिखाना है हमको? सो हमें दिखाना है एफ इज होमोमॉर्फिज्म। सो वी need to show that बाइजेक्टिव तो दिया ही हुआ है, we need to show that this is, सर बोलिए सर बोलिए 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 सर बोलिए। हम लोग ऑलरेडी शो कर दिए सर। वन सर ऑलरेडी हम लोग शो कर दिए हैं कि 1 implies 2, फिर 2 implies 3, फिर 3 implies 4। तो इससे तो ऑलरेडी दिख रहा है ना कि 1 implies 4। तो फिर अदर प्रूफ करने की क्या जरूरत है हम अरे लोग हम 4 implies 1 कर रहे हैं। को? तो वही तो 1 सर, implies 1 से ही मतलब 2 आया, 2 से 3, फिर 4। तो सब तो आपस में 1 से 4 एक तक दूसरे तो हो गया ना। अरे 1 से 4 तक हो, 4 से 1 कैसे हो गया? हमने दिखाया कि ये इसको इम्प्लाई करता है, हमने दिखाया ये इसको इम्प्लाई करता है, हमने दिखाया कि ये इसको इम्प्लाई करता है। ये कैसे होगा? ये कैसे होगा? ये कैसे होगा? दिखाना पड़ेगा, ये थोड़ा ना होगा आपका। वी हैव शोन 1 implies 2, 1 implies, इसका यहां से हो जाएगा कि 1 implies 4 ऑल्सो, बट हाउ डू वी शो 4 implies 1? वो थोड़ा ना हुआ इससे। 1 implies 2 हो गया, 2 implies 3 हो जो गया, सर दैट मींस 1 implies। हाँ बोलिए। जो हम लोग 3 implies 4 किए, तो उसको जो 2 था उससे किए और वो ऑलरेडी 1 से प्रूव करे। तो फिर क्या मतलब जरूरत है 4 implies 1 की? वो मुझे नहीं समझ में आ रहा है। नहीं तो ये आप समझिए, ये आपको बहुत, ये तो पता नहीं कब से चला आ रहा होगा, ये बीएससी नहीं का सर, 12th से जैसे चला आ कि रहा है। सर जैसे अरे हम सुन, 1 अरे ठीक सुनिए सुनिए ठीक सुनिए, है। जैसे ना आपके पास 4 स्टेटमेंट है, 1 2 3 4। स्टेटमेंट क्या है भूल जाइए। 1 implies 2, 2 implies 3 का इस्तेमाल करके आप ये कह सकते हैं 1 implies 3, है ना? अगर 1 implies 2 कर दिया, 2 implies 3 कर दिया, तो इससे ये सिद्ध हो गया कि 1 implies 3 ऑल्सो। लेकिन इससे ये कैसे सिद्ध होगा 3 implies 1? ये कैसे होगा? ये थोड़ा ना ठीक है होगा। सर। नहीं, सोच के देखिए, ये नहीं होगा ना। 1 implies 2, 1 implies 2 और 2 implies 3 से यू कैन कंक्लूड दैट 1 implies 3। देने की प्रूफ जरूरत नहीं है, लेकिन 3 implies 1 कैसे होगा इससे? वो नहीं होगा आपका, है कि नहीं? सो वी स्टिल नीड टू प्रूव दैट 4 implies 1, तब जाके चारों इक्विवेलेंट होंगे। सो वी नीड टू शो दैट एफ इज कंटिन्यूअस एज वेल एज एफ इनवर्स इज कंटिन्यूअस। ये वाला पार्ट तो आसान है, क्योंकि by 4 this in particular, this thing is contained in this thing for every a। तो हम लोगों ने एक रिजल्ट आज सुबह याद दिलाया था। पहला चीज क्या याद दिलाया? एफ इज कंटिन्यूअस इफ ओनली दिस कंडीशन होल्ड्स, सो देयरफॉर एफ इज कंटिन्यूअस। एक पार्ट तो हो गया, इतना पार्ट तो हो गया, राइट? अब दिखाना है कि एफ इनवर्स इज कंटिन्यूअस, राइट? सो अगर एफ इनवर्स कंटिन्यूअस दिखाना है आपको, तो एफ इनवर्स कहां से कहां तक था? यहां से यहां तक था, यहां से यहां तक था, यहां से यहां तक था। और आपको अगर इसी का इस्तेमाल करना है, राइट? सो टू शो
that F inverse is continuous. F inverse is continuous. So what we have to show? We have to show that there are so many ways to show, right? We can show that inverse image of every closed set under the map F inverse is closed, or we can show that F inverse of B closure is contained in F inverse of this whole thing for every B contained in Y. जो हमने आपको रिजल्ट याद दिलाया था, ये तो ये इसके लिए था, F के लिए था, जो X से Y तक पे था. तो क्या था, हर सबसेट के लिए A के लिए F of A closure contained this thing. तो अगर इधर का देखिएगा तो क्या दिखाना पड़ेगा, इसके सबसेट के लिए, इसके सबसेट के लिए, यानी कि B दिस थिंग. तो यहाँ पर ये जो F इनवर्स है, ये इनवर्स मैप है, इनवर्स इमेज नहीं है. ये इनवर्स, ये आपका जो है, तो उसके अंडर में इफ यू टेक, आई एम सॉरी, हमने गलत लिख दिया है, आई एम सॉरी. लेट मी राइट इट अगेन. वो नोटेशन वाली प्रॉब्लम फिर आ जाएगी. हमको ये वाला रिजल्ट लिखना है. तो यहाँ पे F की जगह पर क्या है, F की जगह पर हमारा क्या है, F इनवर्स. ये जो है ये मैप है, ये मैप है, ये मैप है, ये मैप है, ठीक है. और यहां पर भी ये जो है, ये जो है ये मैप है. ये इनवर्स इमेज नहीं है, ये इनवर्स इमेज नहीं है, लेकिन वो चूंकि वो नोटेशन में डिफेक्ट बहुत पहले पैदा हो गया, इसलिए गड़बड़ हो रहा है. फॉर एवरी सबसेट B ऑफ Y, हमको क्या लिखना चाहिए था यहाँ पर, यहाँ पर ये F जो इनवर्स इमेज का नोटेशन नहीं है, ये है मैप, ये मैप है, ये मैप है. तो यहाँ से आपको ये दिखाना है, यहाँ से आपको दिखाना है. तो आप दोनों में से कोई चीज दिखा के देख लीजिएगा, इसका इस्तेमाल कीजिएगा. ये आपको दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है. तो आप कोई भी इसमें तरीका ले लीजिए, कोई भी तरीका इस्तेमाल कर लीजिए, ठीक है, और करके दिखाइएगा इसको. राइट. तो जो भी आपको कंटिन्यूटी टेस्ट करने का जो भी तरीका पसंद आए, चाहे ये वाला चाहे ये वाला, दोनों को इस्तेमाल कीजिए एंड यूज दिस फैक्ट. राइट. एंड रिमेंबर कि ये जो F इनवर्स है यहाँ पर, ये इनवर्स इमेज नहीं है, बल्कि ये वाला इनवर्स मैप है, उसके अंदर भी इमेज है. तो मुख्यतः मुख्यतः हम आप पे छोड़ देंगे. मुख्यतः हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं होमोमॉर्फिज्म को टेस्ट करने के लिए, वो सबसे ज्यादा इस्तेमाल में ये चीज होती है कि ए बाइजेक्टिव मैप इज होमोमॉर्फिज्म इफ एंड ओनली इफ इट इज कंटिन्यूअस एंड ओपन, या कंटिन्यूअस एंड क्लोज, ये दोनों तो एक जैसे ही है. राइट. इसका इस्तेमाल नहीं होता है. तो ये तुमने केवल आपको दे दिया था. मोस्टली इन सम बुक्स इट इज गिवन एज एक्सरसाइज. राइट. तो ये होमोमॉर्फिज्म हुआ, और होमोमॉर्फिज्म को पहचानने के आपके पास ये कुछ अल्टरनेटिव तरीके हैं. राइट. तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. हाँ, हो गया. हेलो. Yes, sir. Okay, so now I will begin something different, and this is what is called as, ये बहुत ही
important product of or the product topology. देखिए है क्या, इसको हम चूंकि आज समय नहीं है, हम आपको कल बताएंगे. जैसे मान लीजिए आपके पास दो टॉपोलॉजिकल स्पेसेस हैं, ठीक है. देन यू कैन फॉर्म x y Cartesian product, right? So the problem is to equip this with an appropriate किस सेंस में हम क्लियर करेंगे, आज तो नहीं, चलिए कल करेंगे. ये दो के लिए हो गया. अब मान लीजिए आपके पास एक और होता z, मान लीजिए कुछ s, ये कुछ होता, तो हम क्या करते, इसी चीज को करते, टू इक्विप x क्रॉस y क्रॉस z विद एन एप्रोप्रिएट टोपोलॉजी. अब मान लीजिए हमारे पास ये तो दो हुए या तीन हुए या चार हुए, या फाइनाइट नहीं, आर्बिट्रेरी है. मान लीजिए हमारे पास बहुत सारे हैं, एक्स आई टी आई टाउ आई, राइट. टू इक्विप द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ दिस थिंग, जिसको डिनोट करते हैं फाई एक्स आई the Cartesian product of these sets with an appropriate topology. ये हमारी प्रॉब्लम है, ये हमारी प्रॉब्लम है, राइट. इसमें प्रॉब्लम एक और इन्वॉल्व है. इसमें प्रॉब्लम क्या इन्वॉल्व है, जो कि हो सकता है कि सब लोगों ने ठीक से पढ़ा ना हो या समझा ना हो, कि अगर आपके पास दो सेट्स हैं तो उनका तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, x1, x2, x1 इसमें हुआ, x2 इसमें हुआ. कई सारे हैं, कई का मतलब फाइनाइटली मैनी, तब भी कोई दिक्कत नहीं है. आप आर एन डिफाइन करते ही हैं एनालिसिस में, हो जाएगा एन टपल्स such that xi belongs to xi, I is equal to 1 2 3 up to n. लेकिन ये जो है ये एक प्रॉब्लम चाइल्ड है, राइट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस थिंग. देखिए, आपको ध्यान देने की बात है कि ये जो आई है ये आर्बिट्रेरी है. आई इज आर्बिट्रेरी, मतलब फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है, काउंटेबल भी हो सकता है, अनकाउंटेबल भी हो सकता है. अगर अनकाउंटेबल हो गया तो प्रॉब्लम यह है कि अगर अनकाउंटेबल तो मालूम नहीं कौन सा इसका पहला एलिमेंट है, कौन सा दूसरा एलिमेंट है, कौन सा तीसरा एलिमेंट. काउंटेबल है तो ठीक है, यू कैन काउंट 1 2 3 कितने एलिमेंट्स हैं. अगर काउंटेबल नहीं है तो ये सुविधा खत्म हो जाएगी. कौन सा पहला कोऑर्डिनेट होगा, कौन सा दूसरा होगा, कौन सा लास्ट होगा, ये आप बात नहीं कर सकते, राइट. तो सबसे बड़ी अड़चन क्या है, बिफोर वी डिफाइन दिस थिंग, we have to be clear what is the meaning of the Cartesian product of an arbitrary family of sets. जब वो क्लियर हो जाएगा तब इसका आंसर हम लोग ढूंढेंगे. तो कल हम आपको बताएंगे how to define the Cartesian product of an arbitrary family of maps, and you will see कि वो ऐसा नहीं है.
राइट? इट इज डिफरेंट, और फिर दिखाएंगे कि डिफरेंट होने के बावजूद भी क्यों वैसा है. सो वो थोड़ा सा टिकलिश है. सो दैट वी शैल डू टुमारो, एंड देन वी शैल डिफाइन, देन वी शैल talk about this thing, how to define the product topology, or topology on the Cartesian product of an arbitrary family of sets tomorrow. ठीक है? तो आज के लिए खत्म. You can leave by now. Thank you, sir. Okay, इसको कल करेंगे. Thank you, sir. Okay, कल करेंगे इसको.